आई वॉज लाइक यार मैं 3-5 साल से कॉमर्स कर रहा हूँ, मुझे ऐसा कुछ पता ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है। और बाद में मुझे इसी बात का टेंशन था कि मैं टफ क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ और ये छोटे छोटे मेरे से हो नहीं रहे हैं, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, सो 86,000 वॉज बिग अमाउंट, यू नो। सो माई प्लानिंग वॉज फुल दैट स्कॉलरशिप मिलेगी तो करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है। सेम विद इक्विटी रिसर्च, मैंने देखी भी नहीं कि उस पीडीएफ में क्या लिखा हुआ है और आई क्लियर्ड। मैंने आज तक कम से कम 300 लोगों को सीएफए पढ़ा होगा एंड हर एक में एक फाइनेंशियल ट्रेट कॉमन रहता था कि वो एग्जाम फी से काफी ज्यादा डरते थे। इसलिए नहीं क्योंकि वो वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, बस वो सीएफए की एग्जाम फीस पे पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे। हाँ, डेफिनेटली आईफोन पे पैसा खर्च कर लेंगे, बाकी लैपटॉप पे पैसा खर्च कर लेंगे, बट एग्जाम फीस पे पैसा नहीं खर्च करना चाहते बिकॉज उन लोगों की मेंटालिटी वैसी थी। बट आज के वीडियो में आई हैव समवन जो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं आता, हैड टू एक्चुअली टेक मनी फ्रॉम समवन एल्स टू गिव द एग्जाम। ऐसे टियर 1 सिटी से नहीं आता, टियर 2 सिटी से नहीं आता, टियर 3 सिटी से आता है एंड वो इतना ज्यादा ब्रेनियाक भी नहीं है, बट ended up clearing amongst the toughest finance certifications all across the world. इतना ही नहीं, ended up clearing it with flying colors, ethics में high score करके आया है एंड ऐसे जो कॉन्वेंट स्कूल के ब्रैट्स होते हैं ना, एक सेकेंड में 100% उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, ज्यादा अक्ल होगी। एंड आई से दैट विदाउट अ डाउट बिकॉज इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड यू प्लान टू डू CFA, it's gonna be the best video you're gonna watch because the level of clarity this person has, जो कॉन्सेप्ट्स उसके क्लियर है, आई हाईली डाउट किसी और के भी होंगे। सो Honestly, this video makes me feel very, very, very proud. Proud किस लिए? क्योंकि बीच में मुझे लगने लग गया था कि क्या यार मुराद, दुनिया की फाइनेंस की ये सारी सर्टिफिकेशंस करने के बाद मुझे टीचर ही बनना था क्या? But after doing this interview, I feel like yes, I am helping students. I am there for a change. So make sure to watch this video till the end. 1.5x पे देख लो, 2x पे देख लो, but watch this video because जो वो कहने वाला है हर एक पॉइंट CFA एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Okay, first of all, thank you so much, आदर्श। पहले बताओ कि when did you start with your CFA का पूरा शुरू कब किया? Actually, I think last year in November, I was not having any idea that something called CFA is there. And in November, actually, I was planning for the MBA. And one thing was clear that I was knowing that MBA is not at all a tough course. Like still in this time, even our dean sir says that कि university की exam fail होना मुश्किल है actually. Then I started that something with MBA I will be going to do. Then I'm so sorry but आपने MBA नहीं कर रहे हो या MBA कर रहे हो? MBA कर रहा हूँ मैं अभी भी। कहाँ से? इंदिरा स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज पुणे से। And I'm so sorry but if I may ask, आपका CAT का स्कोर क्या रहा था? My CAT score was I think 54. That was just a casual exam, but I seriously attempted MAH MBA CET. That is for Maharashtra only. And then my percentile was something around 96.25 percentile. और आपका CFA का एक्सपीरियंस अब बताओ। This is the most remarkable story. Honestly speaking, this is the most remarkable story. So I want you to talk about your CFA. So I was planning to do some extra courses like CS and CMA, and I was more focused towards the CS. So while preparing for my MBA, I will go for the CS because CS is more like a theoretical type. CS or CS? CS company secretary it was. Company secretary. Because it's a more theoretical, so I thought कि चलो MBA के साथ में कुछ तो भी CS हो जाएगा. Then I just googled on and YouTube that courses with MBA that will be better combo. So I got to know about the CA plus MBA, CS plus MBA, CMA plus MBA, and then I got to know about the CFA plus MBA. And everyone was like MBA के साथ CFA जो है वो better combo होता है. It is like a blended, nothing can beat it. And then I got to know. There was a person as CK CET King, who has taken an interview of a person. वो डालमिया से था actually, उसने MBA की थी, and then he placed with Citibank. And he has got a tremendous packages from there. Actually, he had cleared only level 1. And then I googled and then I got to know about your video. You have uploaded one video, and उसमें आपने last में I was knowing that I will going for the CFA, but the thing was that I was not aware about their fees. Like it's most expensive one.
So in It is last very in last section you mentioned about the scholarship. In that video you have mentioned about the scholarship, and in last Yes, I think 10 to 15 seconds you mentioned that we help our students to get the scholarship while we help to for the essay writing, right? ऐसे राइटिंग जो था उसमें हेल्प करते थे. एक्चुअली द थिंग वाज दैट कि आई वाज नॉट आई हैड नॉट जॉइन फिनलैडर फॉर टू प्रिपेयर फॉर MBA. एक्चुअली आई हैड जॉइन फिनलैडर टू आस्क देम फॉर हेल्प फॉर माय एसे राइटिंग. एक्चुअली that was the reason to join Finladder, because I was that much confident that I can clear CFA level 1 with myself on my own study. But the thing was different later on. तो उसके बाद मैंने आई थिंक आपको मैसेज किया था इंस्टा पे, and then I got reply do you ask me about your number, and then some intern was there who used to call me, and then they used to trigger the pulse of the customer, so that type of thing. And then उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा courses है, we provide this courses and all those stuff. And then the problem was of course always the fees, because I belong from a middle class family, so 80,000 86,000 was a big amount. So my planning was full that scholarship मिलेगी तो करनी है, otherwise नहीं करनी है. Then I joined the Finladder. Actually, my brother-in-law sponsored for these courses, even for now for 85,000 or whatever, 1,01,000 was there. So he sponsored for that, and then I joined. And I think 1 and 2 lectures. When I joined Finladder, it was your lecture. That was the weekday lecture. It used to happen in evening, no? तो उसमें मैंने किया, एंड देन द टॉपिक वाज द FRA, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाज दैट लेक्चर, एंड द चैप्टर वाज आई थिंक कैश फ्लो, एंड वी गेट टू नो अबाउट दैट कि लीफो फीफो करके कैसे कंपनी वो करती है जो भी अकाउंट्स मेंटेन करती है. हाँ, तो उसके बारे में मुझे पता चला. एंड आई वाज लाइक यार मैं 3-5 साल से कॉमर्स कर रहा हूँ, मुझे ऐसा कुछ पता ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है. और हाँ, और उसके बाद में एक दो और लेक्चर्स किए तो उसमें बहुत कुछ नया था, एंड वी वर लाइक यार हमने बीकॉम किया है, हमको तो फाइनेंस पता है सब कुछ, बट इट वाज लाइक कुछ पता ही नहीं है, फिर सब कुछ नया लगने लगा. एंड एक्चुअली आई वाज एंजॉयिंग अ लॉट द क्लासेस. इट वाज नॉट लाइक कि CFA में करियर है इसलिए CFA करना है, बट एक्चुअली आई वाज एंजॉयिंग इट. तो बहुत अच्छा लग रहा था वो क्लास करके. देन उसके बाद में, और एक्चुअली उस टाइम में ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था कि एग्जाम देना है, बिकॉज टिल दैट टाइम आई हैड नॉट डिसाइडेड दैट आई विल गो फॉर द CFA बाय पेइंग 1 लाख रुपीज. इट वाज जस्ट स्कॉलरशिप मिला, करना है नहीं तो नहीं करना है, सिंपल. देन आफ्टर 1 month ऑफ क्लासेस देन आई रियलाइज दैट स्कॉलरशिप का विंडो खुल गया एक्चुअली उस टाइम में. एंड उसके बाद मैंने सुना आपने भी बताया कि स्कॉलरशिप का प्रॉब्लम क्या था, कि जैसे अगर हम अप्लाई करते हैं एंड इसके लिए स्कॉलरशिप के ऐसे राइट करते हैं, देन टिल द टाइम वी गेट द रिजल्ट ऑफ दैट स्कॉलरशिप, अर्ली बर्ड का एंट्री हमारी ख़त्म हो जाती है, तो अगस्त अटेम्प्ट के लिए. देन आई रियलाइज यार मुझे तो अगस्त अटेम्प्ट का ही देना है, बिकॉज कॉलेज में उस टाइम पे कंपनियाँ आती है अगस्त के बाद में. Because I am 21-23 batch. I am from 21-23 batch, and that's why I was thinking कि यार अगस्त में निकल जाएगा, and अगस्त का सितंबर तक अगर रिजल्ट आ जाता है, then I would be in better position to get the job. तो इसके लिए मेरा अगस्त थोड़ा फिक्स था. देन आई थॉट कि यार मुझे और द लेवल ऑफ एनर्जी एंड एक्साइटमेंट अबाउट द CFA वाज ऑलवेज देयर. So I thought, then I talked with my brother-in-law, and he said that okay, go for it. Like he was like investment ही कर रहे हो, ऐसा expense तो कर नहीं रहे हो, पढ़ाई है तो फिर उन्होंने बोला ठीक है जाओ. तो एक्चुअली ही स्पॉन्सर्ड फॉर दैट, एंड टिल दैट टाइम आई यूज्ड टू थिंक दैट चलो 85,000 to 86,000 है CFA कोर्स. But when I decided to go for it, and when I enrolled for it, then वो 1,01,000 पहुँच गया, जो कि उसमें टैक्सेस थे लगे हुए. दैट वॉज अननोन, मतलब हमें पता ही नहीं था कि वो उतना तक जाएगा, बट स्टिल उन्होंने बोला कि ठीक है जो है कर लेते हैं. फिर देन आई इनरोल्ड, एंड आफ्टर इनरोलमेंट आई थिंक तब मुझे थोड़ा प्रेशर आने लगा, बिकॉज आई हैड पेड 1 लाख. सो उसके बाद मुझे उतना मजा नहीं आ रहा था. वो भी अपने पैसे नहीं, किसी और से पैसे लेके. वही तो, इट वाज नॉट माय पेरेंट्स, इवन ही हैड बेटेड ऑन मी दैट, एंड इट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इवन गिव माय बेस्ट.
तो उसके बाद में मेरे को थोड़ा प्रेशर आने लगा कि यार पढ़ाई तो अभी करनी है. एंड देन द थिंग वाज दैट कि क्लासेस में लाइक ईशान सर आप जो पूछते थे ना तो वो समझ में भी आता था एंड देन आई यूज्ड टू आंसर इट एज वेल. बट व्हेन इट कम्स टू द पोर्टल का क्वेश्चन तो वहाँ पे मेरे ना एक्यूरेसी नहीं आ रही थी एक्चुअली. तो एक्यूरेसी नहीं आ रही थी तो 55 वही कुछ आ रहा था, 55-60 के आसपास, उतना भी नहीं आ रहा था. तो फिर थोड़ा टेंशन आता है एक्चुअली. नवंबर में स्टार्ट करने के बाद आई थिंक फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल और मई आई हैड नॉट डिड. पहले आपने स्टार्ट कब किया था? सॉरी, आपने स्टार्ट कब किया था सीएफए पढ़ना? CFA पढ़ना आई थिंक व्हेन आई जॉइंड द क्लास आई स्टार्टेड विद द CFA एंड आई जॉइंड क्लास आई थिंक नवंबर इन लास्ट ईयर. नवंबर में आपने स्टार्ट किया था, अगस्त में आपने पेपर दिया. यस सर. सो तो नवंबर से दिसंबर तक अच्छा मतलब थोड़ा फ्लो था क्योंकि मजा भी आ रहा था. एंड आई थिंक दिसंबर लास्ट दिसंबर मजे में क्लासेस देख रहे थे. यस सर, तब मजे में देख रहे थे और अच्छा लग रहा था कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है कंपनी के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, तो बहुत अच्छा लग रहा था एक्चुअली. देन उसके बाद में ना फ्रॉम 23 of December my college has started for MBA and then January to May I think I had not done any study at all. like थोड़ा बहुत होता था बट वो मैटर नहीं करता है उतना, थोड़ा बहुत क्लासेस देखता था. एंड यू नो तब हमारा थोड़ा गैप भी पड़ा था उस टाइम क्योंकि नए बैचेस स्टार्ट हो रहे थे, थोड़ा गैप दिए थे तो पीछे वाला हो गया था बट आगे का तो उस टाइम गैप पड़ा था. तो सीरियसली मैंने देन मई में आई थिंक मैंने स्टार्ट किया एंड देन रियलाइज यार कि मतलब अगर मैं इतना जिस लेवल का मैं पढ़ रहा था उस टाइम, आई रियलाइज कि अगर इतना इजी करके मैं अगर पास कर रहा हूँ CFA देन CFA कुछ बड़ी चीज़ नहीं है. एंड आई वाज नोइंग कि CFA एक्चुअली डिजर्व अ लॉट. तो इसके लिए मुझे ये चीज़ लगी थी कि हाँ, तो ये चीज़ लगी थी कि अगर मैं इतना कम पढ़ाई करके अगर मैं CFA निकाल सकता हूँ तो ऑफकोर्स ये बड़ी बात नहीं है. Then I focused on the study and from 9 to 5 it was my college time. तो उतना तो कॉलेज में रहता था MBA का, यू नो कि बाकी कुछ और पढ़ाई नहीं बट सॉफ्ट स्किल्स वगैरह और इंटरव्यू वगैरह चलते रहते हैं MBA में, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना. तो 9 to 5 was my MBA टाइम एंड देन आफ्टर दैट नाइट में मैं फिर CFA के लिए पढ़ता था. तो नाइट में मेरे को पहले शुरुआत पढ़ते होगे एक दिन में कितने दिन? सर इट वाज जब स्टार्ट किया था मई में, आई थिंक मई के बाद मैंने सीरियसली ली थी उसको. तो फिर मई के बाद मैं ना 10 बजे से 2 बजे 3 बजे रात तक नॉर्मली पहले पढ़ता था. आपको लग रहा है एक मेजर प्रॉब्लम ये भी थी कि आपने अपनी प्रिपरेशन में बीच में गैप ली? वॉज द मेजर प्रॉब्लम एंड दैट मेक्स मी टास्क हेक्टिक. लाइक मुझे फिर से पूरा का पूरा वही करना पड़ा, वही सेम लेक्चर्स देखने पड़े. एंड देन बिगेस्ट ट्रबल वॉज दैट मैंने नोट्स नहीं बनाए थे. That was my biggest problem and biggest mistake. I regret even till now. ये तो मैं पहले दिन से बोलता हूँ, नोट्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट. Actually, I had my notes, but क्या था ना उसका प्रॉब्लम कि वो मैंने रखे नहीं थे. अब किसी भी नोट हाँ रफ में बनाए थे तो कहाँ पे थे, किसमें कौन सा सब्जेक्ट था वो नहीं पता चला था. देन आई थिंक फ्रॉम मे आई स्टार्टेड फ्रॉम फिक्स्ड इनकम. तो उसके बाद मैंने बहुत अच्छा ब्यूटीफुल नोट्स बनाने स्टार्ट किए. मैं हर एक स्टूडेंट को बोलता हूँ कि नोट्स परफेक्ट होने चाहिए, ब्लैक ब्लू रेड जितना यूज कर सकते हो उतना ज्यादा यूज करो, क्योंकि यही वो चीज रहने वाली है जो आपके साथ एंड तक रहने वाली है. नोट्स नहीं होंगे ऑनेस्टली कुछ भी नहीं होगा आपके पास एंड पे. बिकॉज अच्छा सबसे डिफिकल्ट चीज क्या लगी CFA में, मतलब उस पेपर डिफिकल्ट था या फिर पेपर डिफिकल्ट था? मैं कुछ चीजें पूछता, पेपर डिफिकल्ट था क्या? नो सर. अच्छा कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो डिफिकल्ट था? सर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई थी ना कि जस्ट लाइक आई एम सेइंग कि लास्ट 4 months आई डिड वेरी मच स्टडी. बट प्रॉब्लम क्या था कि मैंने इतना ज़्यादा पढ़ लिया उसको कि मैंने इजी क्वेश्चन को मैं ना मेरे से नहीं हो पाता था बहुत बार. लाइक मैंने कॉन्ट में लाइक इन फर्स्ट कॉन्ट वाज टफ फॉर मी क्योंकि आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड. तो कॉन्ट का और स्टैट का थोड़ा मुझे प्रॉब्लम आ रही थी. तो मुझे लीनियर रिग्रेशन एफ टेस्ट ये सब नहीं समझ में आ रहा था. तो आई गॉट इनटू डीप इन इट. सो उसमें क्या हुआ, मैंने ना बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल की सीख गया मैं उसमें. तो लाइक मुझे पता था एफ टेस्ट कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, ये सब टेस्ट ऐड मैं हाइपोथेसिस पूरा कर लेता था बाद में. और जो सिंपल क्वेश्चन आते थे ना, जो सिली मिस्टेक्स बोलते थे हम, आप भी बोलते थे, तो आई यूज्ड टू डू दैट सिली मिस्टेक्स.
और बाद में मुझे इसी बात का टेंशन था कि मैं टफ क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ और ये छोटे छोटे मेरे से हो नहीं रहे हैं. लाइक कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस इसमें भी आते थे पोर्टल्स पे दैट वो आते हैं ना, करंट अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा कंट्री के, सिंपल क्वेश्चंस. दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, इतनी सिली मिस्टेक्स, मतलब वो तो कोई भी मतलब कर सकता था, बट वैसे में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो एक प्रॉब्लम था. फाइनल एग्जाम में फिर ये जो इतना जिस पे फोकस किया उसमें से कितना परसेंट आया था? एक्चुअली सर मोस्टली जो मैंने पोर्टल्स के क्वेश्चन किए थे ना, मैंने देखा कि वही ज्यादातर आए हुए थे. लाइक आई थिंक कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो आई थिंक पोर्टल से बाहर होगा, बहुत ही रेयरली होगा कोई क्वेश्चन, तो पोर्टल के क्वेश्चन थे अच्छे. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे पूछनी थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट होती है, तो क्या ट्रिग्नोमेट्री वगैरह वाली मैथ्स होती है कहीं पे, या फिर डिफरेंट टाइप की मैथ्स होती है जो कभी किसी ने नहीं पढ़ रखी होगी? एक्चुअली आई थिंक कोई नहीं पढ़ता इतना, क्योंकि वो मैथ्स कम स्टैट ज्यादा होता है. एग्जैक्टली, स्टैट ज्यादा होता है, तो उसमें लाइक वही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. एंड वन थिंग इज दैट अगर एक बार वो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, देन वो इजी हो जाता है. लाइक लीनियर रिग्रेशन में आई थिंक द लेक्चर वाज फ्रॉम तुषार सर हैज कंडक्टेड दैट लेक्चर, एंड फर्स्ट गो में नहीं समझ में आया था, बट मैंने फिर से देखा सर का लेक्चर, एंड देन आई रियलाइज कि ये इतना टफ नहीं है, एंड वन बाय वन जा रहे हैं. तो एक्चुअली जब वो ये पढ़ रहे थे, लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे थे, एंड दैट वाज द स्टैंडर्ड एरर, एसएससी, आरएससी, दैट टाइप ऑफ थिंग, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, बट स्टिल उतना नहीं हो रहा था. मतलब अगर रिपीट करके देख रहे हैं, देन पॉज लेके देख रहे हैं, देन इट वाज गुड, और मुझे समझ में आ रहा था क्योंकि मैंने 2 बार एक्चुअली वो लेक्चर्स देख लिए थे. एंड द सेकंड थिंग इज दैट सर ने वो एक्सेल में बताया था ना, तो उसमें से फिर ज़्यादा क्लियर हो गया था कि सर ने बीटा निकाला था रिलायंस का एंड मार्केट का लेके, देन क्लियर हो गया था उसमें मैथ्स. अच्छा एक बात बताओ यार, अब सब कुछ छोड़ो, एथिक्स को इतना ज्यादा कैसे फोड़ लिया? एथिक्स में 100% आई लग रही है मुझे. एक्चुअली सर इथिक्स में इवन आई वाज नॉट श्योर अबाउट दैट, क्योंकि इथिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है कि कोई भी नहीं बता सकता कि क्या मैंने पेपर में लिखा होगा. एथिक्स में मेरे से ज्यादा आए हैं, मेरे को लग रहा है 90%. मैं ना अपना कंपेयर कर रहा था अपने स्कोर्स, एथिक्स में मेरे से भी ज्यादा आए हैं. एक्चुअली सर मुझे भी ऐसा कंफर्म नहीं था. मैं जब पेपर देख के यहाँ पे आया था, तो मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि पेपर कैसा गया, एंड आई वाज लाइक आई डोंट नो कि क्या होने वाला है, बिकॉज इथिक्स इज द सब्जेक्ट जिसमें हम कुछ नहीं बता सकते कि क्या होने वाला है एक्चुअली. तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे जो ट्रिकी थे एक्चुअली, तो मैं वहाँ पे सोच रहा था कि यार यहाँ पे सब लोग गलती जरूर करेंगे, बिकॉज वो कुछ क्वेश्चन कुछ और दे रहे थे, सब लोग को लगा कि अच्छा ये सेक्शन वायोलेट हो रहा है, बट एक्चुअली वो पूछ कुछ और रहे थे, तो उसमें वो देने का था, तो वहाँ पे था. देन कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी. देन आई थिंक एक क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मैंने तुक्का लगाया था. तो बाकी से अच्छा पूरे पेपर में कितने क्वेश्चंस को तुक्का लगाया होगा? ज़्यादा नहीं था सर. एक्चुअली व्हाट आई यूज्ड टू डू इज दैट, पहले मैं करता था, जो आता था मुझे वो कर लेता था, एंड देन मैं मार्क करता था. ये वाला अभी हाँ, मार्क एज ए रिव्यू करके मैं फिर आगे बढ़ता था. एंड देन आई थिंक 10 to 15 क्वेश्चन मेरे बचते थे फर्स्ट लॉट में, 10 to 15 बचते थे. देन आई यूज्ड टू रिविजिट दैट, एंड देन आई ट्राइड टू सॉल्व, एंड एक्चुअली होता था तब, तो थोड़ा टाइम देखा, और एक्चुअली मेरा पेपर जल्दी हो गया था. इवन मेरा फर्स्ट एक पेपर था, उसमें आई थिंक बहुत ज़्यादा सेकेंड हाफ जो था ना, दैट वाज इजी. लाइक फर्स्ट वन जो था मेरा वो थोड़ा टफ था, इट वाज टफ, एंड सेकेंड वन उतना हार्ड नहीं था मेरे लिए. लोगों का थोड़ा डिफरेंट होता है, यूजुअली लोगों का सेकंड हाफ डिफिकल्ट आ जाता है, बट पेपर सबका टाइम से पहले कंप्लीट हो जाता है. अच्छा एक और चीज बता ना, घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था, ये मुझे जानना जरूरी है. बहुत, मतलब सब बहुत हैप्पी थे, बिकॉज एवरीवन वाज नोइंग दैट कि यार इतना इन्वेस्ट किया, एंड सबको पता था कि मैं पूरी रात जगता हूँ, ऐसे पूरे दिन MBA, देन पूरी नाइट में CFA के लिए पढ़ता था. ये पूरी खानदान में बात थी कि आदर्श का रिजल्ट आने वाला है? सॉरी सर, ये पूरी खानदान में से बात थी कि आदर्श का रिजल्ट आने वाला है? नो सर, एक्चुअली मेरा इतना कुछ कनेक्शन है नहीं कि मैं पूरे सबको बताता हूँ, कुछ भी नहीं बताता. इवन आई गॉट प्लेस्ड रिसेंटली 3 to 4 days बैक. तो कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सर. सो CFA के बेसिस पे? सॉरी सर, CFA के बेसिस पे या फिर नो सर, MBA plus CFA. अच्छा, So it was a campus placement actually. हाँ मतलब कैंपस नहीं, CFA के बेसिस पे, या फिर उसके बगैर भी हो जाता? हो सकता था सर शायद, बिकॉज द प्रोफाइल इज ऑफ लाइक यू नो लोन के जो क्रेडिट असेसमेंट टाइप होते हैं ना, सो दैट टाइप ऑफ प्रोफाइल इज दैट. बिकॉज इन आवर कैंपस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आती नहीं है ज़्यादा, तो ओके कोई नहीं भी बहुत बड़ी लाइफ है ना, बट क्रेजी यार.
it's a ANZ bank, sir. So nice. Congratulations, yaar. Congratulations. thank you, sir. So I was talking about फैमिली के रिएक्शंस क्या थे. सो एवरीवन वाज नोइंग कि मतलब मेरे खुद के जो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मतलब पीजी में रहता हूँ, तो हाँ मेरे फ्रेंड्स को पता था कि यार पूरी नाइट ये बंदा स्टडी करता है, तो ऑफ कोर्स डिजर्व करता है, तो इतना था. तो उनके रिएक्शन, एंड आई वाज लाइक यार ऐसा लग रहा था कि मुझे जॉब नहीं मिली, मुझे मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ है. सो इस लेवल का मेरा रिएक्शन था आफ्टर रिजल्ट. एंड रिजल्ट की बात कर रहे हो कि रिजल्ट का आना इतना, so it means a lot, like even placement doesn't matter for me at that level, but CFA का result was actually for my, because I had put in everything for it. Like मैंने सब कुछ छोड़ी थी. Even after exam there was one thing is that इस बार मुझे पता नहीं था कि मैंने गलत क्या किया है इस एग्जाम के साथ. So that was the thing, क्योंकि मैंने सब कुछ किया था, जो भी CFA मांग रहा था मैं सब कर रहा था. एक्चुअली मैंने जिम वगैरह कुछ नहीं लगाए थे, छोड़ दिए थी सब कुछ. जिम छोड़ा? ये तो सब कुछ छोड़ दिया. So इतना हो गया था. एंड द मेन प्रॉब्लम विथ मी while CFA journey was that my passport, like my exam was on 26th of November and till 5th of November I was not having my passport. So I was not knowing that whether I will be able to give the exam or not. इस लेवल का था मतलब. एंड आई अप्लाइड फॉर दैट पासपोर्ट इन जनवरी, एंड जस्ट बिकॉज यू नो इतना टाइम ले लिया सिस्टम, जनवरी से अगस्त. ये सर सिस्टम एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में, तो वो ना इशू ही नहीं कर रहे थे. and then I mailed everyone from higher level that this is the thing, I need to have the passport to give my exam, otherwise they will not let me appear for the exam. And after I think 6 to 8 months I got my passport. Like वो last chance था मेरा, अगर उस टाइम नहीं मिलता तो I could not have made it. Like मुझे एंट्री ही नहीं मिलती उसके लिए, एग्जाम में बैठने के लिए. तो बिकॉज यू नो CFA और कुछ नहीं मांगता है, बस एग्जाम के टाइम पे पासपोर्ट लेके आओ. तो दैट वाज अनदर प्रेशर कि मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ यार, बट पता नहीं कि मैं पेपर दे पाऊंगा कि नहीं. तो ये क्रेजी स्टोरी है यार. तो ऐसा सीन हो गया था उसके साथ सर. एंड आपने पैसे किससे लिए थे? जीजा से या ना? इसे जीजा से लिए थे मैंने. उनका क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन he was like even he is like you are doing your investment, right? अगर आप खुद पे खर्च, अभी भी वही है like for any certification. Okay, रिजल्ट के बाद he was like कि अब क्या ही चाहिए, आपने अपना पूरा किया एंड मिला आपको सब कुछ. Then and after result the first question was अब level 2 कब करना है? Oh nice, I love this person यार. So that was his reaction कि अगर करना हो तो बताओ फिर. And for classes even he had given me that amount even for classes in ladder. तो उसके लिए such a wonderful person यार, such a wonderful person. तो ऐसा था सर. और बाकी मुझे MBA में जो उसका CFA का जो हेल्प हुआ, इवन इट डजंट मैटर सर इफ आई पास्ड और नॉट, दैट इज नॉट द मैटर, बट मुझे उससे MBA में बहुत हेल्प मिली थी. लाइक आई हैड अ क्लियर विजन. फर्स्ट थिंग वाज दैट कि लाइक फाइनेंस में हम चले जाते हैं, MBA फाइनेंस करना है, बट उसमें क्या करना है, बिकॉज फाइनेंस इज अ वेरी बिग थिंग, लाइक इट्स अ ओशन. तो उसमें करना क्या है, आपको इक्विटी रिसर्च में जाना है, कॉर्पोरेट में जाना है, किस में जाना है. तो दैट वाज द थिंग. तो मैं देखता था कि मेरे कॉलेज में सबको मतलब प्रॉब्लम आता था कि करना क्या है यार फाइनेंस में, आ तो गए हैं, बट मेरा ऐसा था कि विजन क्लियर था कि हाँ मुझे ये करना है, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल CFA कर रहा हूँ मैं, तो ऑफकोर्स मेरे को इक्विटी रिसर्च या इस टाइप के प्रोफाइल में जाना है. तो क्लियर था उतना चीज़. दूसरी चीज़ कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी पड़ती थी MBA के लिए. लाइक फाइनेंस के जितने भी चैप्टर्स थे वो सारा CFA में कवर. हाँ, तो लाइक हम MBA में जो बेसिक लेवल पढ़ते थे ऑलरेडी आई हैव क्लियर्ड विद एडवांस लेवल, ऐसा हो जाता था. देन एंड द थिंग वाज दैट माय MBA पेपर एंडेड ऑन 25th of November and on 27th I had appeared for the CFA level 1. तो 2 दिन का गैप. सॉरी सर, MBA के मार्क्स आए क्या? नॉट टिल नाउ, बट अच्छे ही आएंगे सर, अच्छे गए हैं पेपर. अच्छा, जिस दिन CFA के पेपर, आई एम सो सॉरी यार, बहुत सवाल आ रहे थे दिमाग में. जिस दिन CFA के पेपर से निकले क्या लग रहा था, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मतलब सर ऐसा कंफर्म नहीं था वो, बिकॉज यू नो सर प्रॉब्लम क्या था कि यू नो मैंने बोला कि वो मैंने रिव्यू एज अ मार्क किया हुआ था.
तो उसके बाद में क्या हुआ था ना कि मैं जब उसको रिमाइंड कर रहा था ना कि मैंने पेपर में क्या है, तो मुझे वो क्वेश्चंस नहीं याद आ रहे थे जो मैंने किया हुआ है, वो क्वेश्चन याद आ रहे थे जो मैंने रिविजिट के लिए रखा हुआ है। तो मैं बोलता था यार वो सही होगा या गलत होगा, ऐसा ऐसा था। तो फिर वहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा था और वहाँ पे मेरे को सेल्फ डाउट भी हो रहा था कि यार मैंने किया है कि नहीं। देन फिर से मैं याद करता था कि यार मैंने सही भी बहुत कुछ किए हैं। फिर मैं याद करता था यार 15 क्वेश्चन ही मैंने मार्क एज रिव्यू किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट मार्क एज ए रिव्यू आई हैड गिवन 100% करेक्ट फॉर्म, मतलब उतने के लिए तो मैंने किया है पूरा का पूरा सही। तो कहीं पे कॉन्फिडेंस था भी, कहीं पे नहीं भी था, यार पता नहीं क्या। बट स्पेशली इथिक्स नो वन कैन से कि यार हाँ सही मैंने किया है, उसके लिए तो कुछ था ही नहीं ऐसा। तूने तो एथिक्स स्कोर किया है यार। मैंने ऑनेस्टली इतना ज्यादा हाई स्कोर एथिक्स में देखा नहीं है। मुझे अब हमेशा हर एक को मैं बोलता था मेरा एथिक्स में 90%, मैं चेक कर रहा था, पक्का मुझसे ज्यादा एथिक्स में। एक्चुअली आई फॉलोड योर वे, लाइक कि स्टिक टू द पॉइंट, जो भी 8 पॉइंट दिए हुए हैं। एंड आई थिंक मेरे वॉल पे ना वो हमेशा लगा रहता था फ्रॉम फेब ऑनवर्ड्स। आई पुट इट दैट ऑन माई वॉल और हमेशा वो लगा रहता था कि 8 है। और वो मेरे को आप सोए हुए में पूछ लो, आई वॉज रेडी टू गिव यू द आंसर। तो उसके लिए मैं हमेशा रेडी था। तो ऐसा है। तो ये होती थी उसके साथ में। तो इथिक्स ऐसे हो रहा था, बट स्टिल इथिक्स में ना मेरा आ रहा था अच्छा खासा, मतलब जो एक्यूरेसी आ रही थी जो मेरी इसमें भी, लाइक यू यूज्ड टू आस्क अबाउट दैट एक्यूरेसी क्या आ रही है। तो मॉक में भी अच्छे आते थे, देन उसमें भी अच्छे आते थे, बट स्टिल श्योर नहीं था कि यार पता नहीं। और आप एक केस बताते थे कि वो लड़का था 90+ आता था, बाद में उसको नहीं आया है पेपर में, तो डर भी लगता था फिर कि यार अपना भी ऐसा कुछ हो जाए। मैं ये झूठ नहीं बोल रहा, बट मेरा एथिक्स के पेपर के 2 दिन पहले मैंने एथिक्स का एग्जाम दिया था, मेरा 35% आया था सच्ची में। 2 दिन पहले मैंने दिया था CFA का मॉक, मेरा 35 आया था। तो वो किसी को नहीं पता होता यार CFA के एथिक्स में क्या हो रहा है। बट एक्चुअली और मेरे साथ सर ऐसा इसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हुआ। एक्चुअली मैंने ना आई थिंक इन जनवरी आई हैड गिवन, मैनेजमेंट में तो बच गया है। हाँ एग्जाम दिया था मैंने जनवरी में एंड आई क्लियर विद 70% एक्यूरेसी। एंड मेरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, लाइक आई वाज डन विद एवरीथिंग, लाइक बायसेस जो भी होते हैं, लाइक साइप रेशो, टेनर रेशो, सब कुछ किया था मैंने। बट स्टिल आई डोंट नो कैसे क्या वो कम आ गया, बिकॉज इफ वो थोड़ा ज्यादा आता तो अबव 90% होता वो फिर। आई थिंक वैसे भी तेरा स्कोर कंफर्टेबली ऊपर था, तो मतलब अगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और भी गॉड फॉरबिड नीचे होता तो यू वुड हैव क्लियर्ड इट, क्योंकि एथिक्स का भी यू हैड एथिक्स एडजस्टमेंट। तो मतलब अगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पूरा ही गंदा भी होता यू वुड हैव स्टिल क्लियर्ड इट, बिकॉज़ बाकी सारे स्कोर्स अच्छे थे। जैसे बाकी सब थे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड कॉन्ट्स में, आई डोंट नो कॉन्ट्स में कैसे रह गए थे, क्योंकि कॉन्ट्स तो मेरा बहुत अच्छा था एक्चुअली पहले से, मतलब शुरू में तो नहीं अच्छा था, बिकॉज यू नो आई एम फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, तो उतना कुछ मैंने किया था। क्योंकि जो ये रहते हैं साइंस में, थोड़ा वो लोग थोड़ा बहुत नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नॉलेज होता है, बट मैंने कभी सुने भी नहीं थे। What do you think? कॉमर्स वालों को बेनिफिट है या फिर नॉन कॉमर्स वालों को बेनिफिट है? आई थिंक सर कॉमर्स वालों को बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि FSA की वजह से। हाँ FSA की वजह से। एंड कॉन्ट्स में बोलूंगा कि नॉन कॉमर्स वाले भी इतना जिस टाइप का वो कॉन्ट है वो नॉन कॉमर्स वाले भी नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं, जो हम क्योंकि हम स्टैट ज्यादा पढ़ते हैं। मैथ्स वाला कॉन्ट है नहीं, वो स्टैट्स है। इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा है। उसमें आपको ये डे टाइम वर्क नहीं करना है, उसमें आपको इसमें स्टैट टाइप करना है, तो वो फिर दोनों को सीखना पड़ता है। इसलिए एंड FSA में क्या है कि आपको बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं करनी पड़ती है, इवन कॉमर्स को भी नहीं पता होता, तो बट स्टिल बैकअप होता है वहां से थोड़ा सा। तो कॉमर्स वाला आई वुड से कि कॉमर्स वाला थोड़ा सही रहता है उनका। भाई अब मेरे को भी जीजा वाला आंसर बता दे, लेवल 2 का क्या प्लान है? सर लेवल 2 का प्लान अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ। एंड मतलब आई हैड ऑर्डर्ड फॉर द सेफ ए करिकुलम एंड मैं सोच रहा हूँ वो करता हूँ। एंड देन व्हेनेवर आई विल फील कंफर्टेबल कि मैं अब जा सकता हूँ, देन आई विल गो फॉर इट। एंड मैं सोच रहा हूँ अभी के लिए कि नवंबर अटेम्प्ट आई वुड बी गिवन। Sounds good. Honestly sounds good. नवंबर अटेम्प्ट के लिए मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि फिर वर्क भी होगा ना अभी 4 to 5 months। आफ्टर 4 to 5 months आई विल बी ज्वाइनिंग द कंपनी एंड द शेड्यूल इज लाइक द कंपनी का शेड्यूल जो है वो मॉर्निंग 5 to 2 PM है, तो उसके बाद में टाइम। यस सर, तो बहुत अच्छा है। यस सर, सो दैट इज व्हाई आई एम प्लानिंग फॉर इट। एंड ऑफ कोर्स इस बार वो मिस्टेक्स नहीं करने जो नोट्स नहीं निकाले थे और जो गैप लिए थे वो नहीं करने हैं ऑफ कोर्स, तो उसके लिए। एंड इतना मजा आ रहा है ना, तो मुझे इतनी खुशी हो रही है। मेरे मुंह से बत्तीसी ना सच्ची में नहीं जा रही,
सच्ची में नहीं जा रही। जब भी मैं सोचता ही हूँ, मुझे कसम से अल्लाह की कसम मेरे मुंह से बत्ती सी जा ही नहीं रही है। एक्चुअली सर मेरे भी मतलब मेरे लाइफ का इससे बेटर एग्जाम, लाइक मैंने बहुत सारे एग्जाम मतलब सीईटी के लिए प्रिपरेशन की थी, देन कैट के लिए भी थोड़ी की थी, देन और भी दिए थे एग्जाम्स, बट आज तक सीएफए जैसा फील ही नहीं आया। और एक्चुअली सीएफए का पढ़ाई जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइक उनका जो करिकुलम है ना इतना ब्यूटीफुल है ना। सीएफए का इतना ज्यादा मजा नहीं है, मैं क्लास में मिलता यस सर ऑफ कोर्स। तो उनका जो करिकुलम है और जो अपन सीएफए में पढ़ते हैं ना एक्चुअली बहुत प्रैक्टिकल है। लाइक वो ये वाला नहीं करते हैं कि थेरी कर रहे हैं, ऐसा फील नहीं आता कभी भी। Like if we are studying about the derivative, then we can directly see in the market that what is happening. And second thing is that CFA, I was talking about the CFA ने मेरे को help क्या की थी वो MBA में। तो फर्स्ट थिंग वाज दैट माय कॉन्फिडेंस लेवल तो हमेशा पीक पे रहता था वो, जस्ट बिकॉज माई CFA। सो बिकॉज यू नो कॉन्फिडेंस इज बैक बाय द नॉलेज। तो मेरे को हमेशा मेरा कॉन्फिडेंस पीक पे रहता है बिकॉज आई वॉज नोइंग दैट आई डिजर्व बेटर एंड आई एम डूइंग माई हार्ड वर्क एंड ऑल दोज थिंग। तो मैं अच्छा था उसमें और मैं कॉन्फिडेंट फील करता था हमेशा ही। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनीथिंग अबाउट फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स तो मैं वहाँ पे कॉन्फिडेंट फील करता था। सेकेंड थिंग वॉज दैट आई डोंट नीड टू स्टडी फॉर MBA एट ऑल। हाँ मार्केटिंग वगैरह का रहता था तो उसका थोड़ा करना पड़ता था, अदरवाइज फाइनेंस का ऑल द सब्जेक्ट्स फ्रॉम फाइनेंस आई हैव नेवर स्टडीड फॉर दैट। इवन बिफोर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ऑल द एग्जाम्स वट एवर रिलेटेड टू द फाइनेंस, मैंने एक दिन पहले रात तक मैं CFA की पढ़ाई कर रहा था। मैंने MBA की पढ़ाई की नहीं थी कभी एंड स्टिल मैं फुल लिख के आता था पेपर में। देन उसके बाद में ये क्लियर था मेरा। देन कोई भी इंटरव्यू अगर होता था देन वेन एवर आई यूज टू मेंशन अबाउट द CFA दैट आई एम अ CFA लेवल 1 कैंडिडेट, तो मेरा इंटरव्यू मोस्टली उसी पे होता था। हाँ ये मुझे पूछना था तो ये मेरे दिमाग में चल रहा था। तो जब इंटरव्यूज होते थे क्या क्या पूछते थे CFA के बारे में? एक्चुअली तो होता क्या था ना, क्योंकि ये मेरा प्लस पॉइंट था एंड आई वाज वेरी मच अवेयर अबाउट दैट CFA स्टफ कि क्या हो रहा है CFA में, क्योंकि मैं कैंडिडेट हूँ। तो मैं क्या करता था ना, जब भी इंटरव्यू एक क्वेश्चन आता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो उसमें क्या करता था मैं लास्ट पॉइंट में मैं ना बोल देता था कि आई एम ऑल्सो CFA लेवल 1 कैंडिडेट। तो उनको ना वो टिक करती थी, तो वो फिर क्वेश्चन करने लगते थे ओके CFA लेवल, फिर CFA के बारे में पूछना, और हमको तो सब पता ही है CFA के बारे में। तो फिर हमारा इंटरव्यू आगे अच्छा जाता था एक्चुअली। तो ये ज्यादा हाँ तो वो हमेशा हेल्प की। और एक्चुअली जब व्हेन यू से दैट इट इज नॉट द मैटर दैट यू हैव क्लियर्ड लेवल 1 लेवल 2, बट जब आप CFA का नाम लेते हो, जब आई एम अ कैंडिडेट, उनका एक्सप्रेशन एक्चुअली चेंज हो जाता है। एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। हाँ एक्चुअली चेंज हो जाता है उनका एक्सप्रेशन कि यार मतलब ही विल सी यू एज एन इलाइट क्लास जस्ट लाइक दैट कि यार कुछ तो भी बंदा कर रहा है स्पेशल, क्योंकि MBA फाइनेंस बट पता है ये बैकफायर भी कर जाता है अगर उसके बाद फिर CFA के बारे में क्वेश्चंस पूछे एंड वो नहीं आए। हाँ वो इतना ज्यादा बैकफायर कर जाता है। यस सर, बट एक्चुअली आई वाज गुड विद डोमेन, टेक्निकल के साथ मेरा अच्छा था क्योंकि आप जो सिखाते थे ना तो वो ज्यादा मेरे दिमाग में बैठता था एक्चुअली। तो मैं क्या करता था ना, मोस्टली मैं क्या करता था कि जब भी मुझे ऐसे कोई कंसेप्ट पूछ लिए इसके बारे में, कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, तो मैंने उनको एग्जांपल दे देता था। हाँ तो एग्जांपल से उनको समझ आता है कि हाँ बंदे को पता है सब कुछ, कि ऐसे ही नहीं बोल रहा है। तो वो मुझे हमेशा मेरा प्लस पॉइंट रहा है। इवन इन माय रिसेंट प्लेसमेंट मैंने उनको जिक्र किया कि मैंने किया है ऐसा CFA, तो इट वाज लाइक हाँ। फिर उसने फिर CFA में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ते हैं नॉर्मली, तो मैं उधर मेंशन कर देता था। तो मैं मेरा इंटरव्यू में खुद हैंडल करता था, मैं जो इधर पढ़ रहा हूँ। आई सर मैं एक सच बात बता रहा हूँ। मेरा एक गधा सा दोस्त था, वो मुझे बोलता था कि तेरे इंटरव्यूज कैसे निकलते हैं। मैं किसी भी कंपनी में एग्जैक्टली सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई करता था। आई सर ये बेस्ट स्ट्रैटेजी रहती है। करना क्या होता है, इंटरव्यू को खुद हैंडल करो। हाँ। एक दो ऐसे बोलो जिन पे वो बार बार क्वेश्चन पूछते जाएंगे, उसके बाद से मैं खुद ही हैंडल करता था। डोंट लेट देम यूज देयर माइंड एट ऑल। एग्जैक्टली, खुद ही उनको अगला क्वेश्चन भी दिमाग में डाल के रखो। एग्जैक्टली सेम। अब मैंने अपने एक दोस्त को बोला कि मैंने उसको ये नहीं बोला, मैंने उसको बोला कि मैं क्या करता हूँ। एंड सेम चीज मैं भी करता था कि इंटरव्यू का जब टेल मी अबाउट योरसेल्फ है, उसके एंड पे CFA या FRM का मैं वर्ड डाल देता था कि आई एम दिस ऑल्सो। उसका उसी पे सवाल चलते थे। मेरे गधे दोस्त ने क्या किया, उसने भी बोल दिया। उसने कुछ भी नहीं किया था, उसने भी बोल दिया। उसको इतना ग्रिल किया है, अगले 6 मिनट उसको सिर्फ पूछेंगे CFA पे क्वेश्चंस।
उसने एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, 2 जवाब दिया वो भी गलत दिया, उसको नेक्स्ट राउंड में ही नहीं बुलाया। हाँ, दैट इज द थिंग, बट फॉर दैट मैटर यू विल हैव टू बी गुड विद टेक्निकल। और जो भी आप बोल रहे हो, और मेरा कैसा था, अगर मैं किसी चीज में वीक हूँ तो मैं उसका जिक्र ही नहीं करूंगा, मैं जिसमें अच्छा हूँ मैं उसके बारे में, लाइक आई वाज गुड इन टेक्निकल एनालिसिस। तो एक्चुअली होता क्या था ना, लाइक आई हैड टोल्ड यू दैट फॉर होल नाइट आई यूज्ड टू स्टडी फॉर होल नाइट, लाइक 10 से लेके कभी कभी मेरा 6 बज जाता था, कभी कभी जब पेपर पास आने लगे तो 10 बजे से लेकर के मेरा 8 बजे तक मैं कभी कभी पढ़ाई करता था। देन मैं जाता नहीं था फिर कॉलेज, सेकेंड हाफ में जाता था, क्योंकि मैंने बोल के रखा था फैकल्टीज को भी दैट आई एम हैविंग माई एग्जाम। हाँ, तो वो भी थोड़ा सपोर्ट करते थे कि लाइक हाँ, ही वॉज ऑल्सो प्राउड दैट कि कुछ कर रहा है लड़का। एंड यू नो कि MBA में अगर आप फाइनेंस करना चाहते हो तो MBA इज नॉट इनफ फॉर फाइनेंस, लाइक यू विल नॉट गेट दैट मच टेक्निकल नॉलेज फ्रॉम द MBA itself until and unless I am ABC से हो, फिर कोई और क्या MQ तो वो फिर फायदा नहीं है। हाँ, तो वही होता था। अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्लैरिटी दैट यू हैव, ऑनेस्टली इतनी क्लैरिटी मुझे नहीं लगता लोगों में है। आई बहुत मैंने अमेजिंग लोगों के भी जो इंटरव्यू लिए, मुझे नहीं लगता उन लोगों में इतनी ज्यादा क्लैरिटी है, उनको ये सारी चीजें। एक्चुअली आई हैड फेस्ड दिस थिंग इन माय ड्यूरिंग माय MBA की, मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट कि सॉफ्ट स्किल डेफिनेटली यू विल डेवलप, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल दोज थिंग, आप सब कुछ करोगे। बट अगर आप चाहोगे कि मैं टेक्निकल में अच्छा हो जाऊं तो उसके लिए आई थिंक MBA इज नॉट इनफ, बिकॉज यू नो मैंने आपको वही बोला कि जो मेरा पेपर होता था, यूनिवर्सिटी के पेपर्स होते थे वो बेसिक लेवल रहते थे, और मैं ऑलरेडी उनके एडवांस लेवल पढ़ता था। लाइक उसमें ऑप्शन के 2 टाइप्स बताते, मैं 4 टाइप बता के आता था उनको पेपर में। तो दैट वाज द थिंग विद दैट। और उसके बाद में सेकेंड थिंग वाज दैट सर्टिफिकेशंस and workshops, like college used to conduct workshop for derivatives, equity research and financial modeling। तो डेरिवेटिव का हो क्या रहा था सीन कि लोगों को समझ में नहीं आता है स्टूडेंट्स को, एंड जस्ट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी क्लियर ऑल दोज थिंग इन माई CFA करिकुलम, तो मेरे को वहाँ पे ना समझ आता था एक्चुअली, तो मैं वो ग्रास्प कर पाता था। तो वो थिंग थी उनके उस टाइम में। एंड इक्विटी रिसर्च के साथ भी सेम चीज होती है, फाइनेंशियल मॉडलिंग के साथ, बिकॉज फाइनेंशियल मॉडलिंग इज लाइक अपने माइंड में आप मॉडलिंग कर रहे हो यार, प्रॉफिट एंड लॉस से वो जा रहा है बैलेंस शीट में, तो आप माइंड में ही वो पहले कैलकुलेट करते रहते हो। तो दैट वाज द थिंग विद CFA, बिकॉज मैंने किया था तो मेरा वो कंसेप्ट क्लियर था उधर पे, तो मुझे बहुत हेल्प होती थी वहाँ पे ग्रास्प करने, मुझे इजीली हो जाता था मेरा वो, लाइक फाइनेंस कुछ भी चीज़ें फाइनेंस के बारे में सीखने जाओ नया तो हो जाता था वहाँ पे। And apart from that, when I enrolled for the certification, I think I enrolled for 5 or 6 certification of NISM and CFM. And I remember, I think last month I cleared derivative with 81% accuracy. And trust me, till now I have not opened my PDF at all. मैंने अभी भी नहीं पढ़ी है। सेम विद इक्विटी रिसर्च, मैंने देखी भी नहीं कि उस PDF में क्या लिखा हुआ है, और आई क्लियर्ड both of that। and म्यूचुअल फंड ऑफ कोर्स वो हार्ड नहीं है इतना, बट डेरिवेटिव समवॉट वो थोड़ा टफ रहता है बाकी इन सब से। मैंने एक से पर्सनल ये किया, तो स्टिल मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी वो पढ़ने की। एंड आई वॉज लाइक सेम चीज़ आपने भी किया था, आपने बताया था कि यू हैड नॉट इवन रिमेंबर दैट व्हाट एग्जाम यू हैव एनरोल्ड फॉर। आईसर में यार, और मैंने भी वही किया था, बट कौन सा था मुझे याद नहीं। हाँ, तो वही मेरे साथ होता था, क्योंकि पांच थे वैसे तो नहीं, मतलब ऐसे था, बट कौन से डेट को है, लाइक 2nd, 3rd, 4th ऐसे। एक तो एग्जाम मेरे चले गए बिकॉज आई वॉज हैविंग माई प्लेसमेंट शेड्यूल, 2nd को था मेरा, एंड म्यूचुअल फंड भी उसी दिन था, तो वो मेरा कैंसिल हो गया, वो हो नहीं पाया, तो उसकी वजह से वो कैंसिल हो गया। बट पढ़ने की फिर जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी हमने किया हुआ है ये चीज़, तो वहाँ पे वो चीजें होती है क्लियर एकदम। भाई एक CFA क्लियर करने से इतना कॉन्फिडेंस अगर आ सकता है, मैं फिर से CFA देना चाहता हूँ। एक्चुअली कॉन्फिडेंस वाज द थिंग। MBA में कुछ है तो कॉन्फिडेंस है तो यू कैन रॉक, कुछ भी कर सकते हो फिर आप, ऐसा MBA है। मैंने जहाँ तक अभी तक ये एक्सपीरियंस किया है MBA के साथ में, कुछ भी हो, अगर कोई फैकल्टी जा रही है। और व्हेन आई यूज्ड टू अटेंड एनी वर्कशॉप, मैं बहुत इंटरेक्टिव रहता था, क्योंकि वो जो बोल रहा था वो मैं समझ पा रहा था, और मैं जो बोल रहा था वो समझ पा रहा था। तो दैट वाज द थिंग। तो उसमें मैं क्या होता था कि वो जान भी जाता था कि हाँ ये लड़का ऐसा। देन बाद में उसको पता चल जाता था कि CFA कर रहा है बंदा, तो बोलता था ओके CFA कर रहे हो, फिर तो कोई बात ही नहीं है। भाई एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड, we'll end this video here because मेरे को पता है क्या लग रहा है, मेरे को लगता है हम लोगों को ये पेप टॉक अभी जो CFA वाले बंदे हैं उनको देनी